स्थापत्य होता क्या है? मंदिर जो बनना शुरू हुए भारत में वो बुद्धिज्म के रिस्पॉन्स पे बनना शुरू हुए। तो हम लोग मूर्ति उपासक ही सिर्फ नहीं है हिंदूज, वो मूर्ति भगवान नहीं है। अलोरा इज अ मार्वल, इट्स अ मैन मेड मार्वल। लाइक द वेस्टर्न पीपल बिलीव कि अलोरा ह्यूमंस ने बनाया ही नहीं है, वो एलियंस ने बनाया है। आपको क्यों किसी मंदिर की किसी भी मूर्ति में कोई फ्लॉ नहीं दिखता, कोई इम्परफेक्शन नहीं दिखता? विठल टेम्पल की बात कर रहे हो, वहाँ के आर्किटेक्चर की, उसी प्रॉक्सिमिटी में विजयनगर के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे लोटस महल है, हजारा राम टेम्पल है, महानवमी डब्बा है। अब जो चोल टेम्पल्स हैं वहाँ पे देखो, उन्होंने क्लोज्ड स्पेस में टेम्पल को यूटिलाइज किया, तो कुछ मंदिर तोड़ के स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे थे, तो हमें उसके रेमिनेंट्स भी मिलते हैं। तो जब आप सल्तनत एरा के आर्किटेक्चर को देखते हो ना, तो वो बहुत मैसिव है। जब अकबर का आर्किटेक्चर हम देख रहे हैं, जब हम सीकरी देख रहे हैं, तो आपको बुलंद दरवाजा देख रहे हैं। अगर मुगल राजपूत एलिमेंट्स ले रहे हैं तो राजपूत आर्किटेक्चर में, जैसे आमेर के आर्किटेक्चर में मुगल एलिमेंट्स। गॉथिक आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं तो वो भी बहुत ही स्पिरिचुअल आर्किटेक्चर है। गॉथ्स का गॉथिक आर्किटेक्चर, ब्रिटिश आर्किटेक्चर, रेनेसांस एज का रेनेसांस आर्किटेक्चर, बैरोक आर्किटेक्चर, फ्रेंच आर्किटेक्चर, देन हाउ कम हिंदू आर्किटेक्चर एंड मुस्लिम आर्किटेक्चर? It was him only who designed Chandigarh in 1950s. Hello friends, we are again at Akshat sir's place with our friends discussing on architecture. So sir, if I'm right, you have done PhD in architectural history, right? Right, I've done my PhD on architectural history of the Mughals. So yeah, well, architecture is one of my specializations. Today you have asked to talk about architecture. So first understand the basics of architecture. है क्या architecture? स्थापत्य होता क्या है? So let's go back to the thinkers, the ancient thinkers who talked about architecture. Architecture in its simplest definition is the expression of form. It's an art form and an expression of form in concrete. The utilization of space. We all know that the universe is built with space and time. That is spatially and temporally. Architecture bhi wahi hai. It is the utilization of space built to last through time. Right? So there was this thinker called Vitruvius who has given 3 core principles of architecture. Number 1 being formatus, number 2 being utilitas, and number 3 being venustus. Formatus is the strength of the building. Utilitas is the function of that building, and venustus is the beauty, the aesthetics, the decoration of that building. So these 3 are the basic principles on which any architecture anywhere in the world is built. All right. Since our focus should be on Indian architecture more, let's go back to the ancient times, right? The ancient architecture, what we have now, the remnants, is basically we have the temple architecture. All right. Temple architecture जो होता है, ये it has the capability, the ability to last through ages, right? और हमारे पास है ancient temples, which are a sheer reflection of man's expression, which are a sheer reflection of that culture. We all must remember that the monuments, the buildings, the architecture is also one of the most important part of any culture. Culture is not just your lifestyle. Culture is not just your history, your values, your traditions. It is also architecture. That is why architectural studies is also known as cultural studies. And we study it in the history of art and culture. All right. So coming back to ancient India, temple architecture जो है ना, वो एक तरह से उस दौर का, उस युग का हमें बिल्कुल क्लियर कट रिप्रेजेंटेशन करता है हमारे आगे कि व्हाट वर द बिलीव्स, व्हाट वाज द फिलॉसफी ऑफ बिल्डिंग सच बिल्डिंग्स, राइट? तो जो सबसे ओल्डेस्ट जहां हम जा सकते हैं
वो टेम्पल आर्किटेक्चर है, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है, वो स्तूपा आर्किटेक्चर है, विच अगेन इज अ श्राइन. लाइक टेम्पल इज अ श्राइन, अ स्तूप इज ऑल्सो अ श्राइन, अ बुद्धिस्ट श्राइन. तो हमारे पास जो रेमनेंट्स हैं वो उसी श्राइन आर्किटेक्चर के एग्जिस्ट करते हैं. ऑल राइट. Since you're telling about temple architecture, what is its philosophy? Okay, so you have directly jumped onto the philosophy of architecture, temple architecture. So मंदिर की शिल्प कला को अगर हमें जानना है, मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ सो दैट इट इज़ इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीवन. तो जो मंदिर स्थापत्य है या टेम्पल आर्किटेक्चर है, ये समझने के लिए हमें पहले हिंदुइज्म की फिलॉसफी को समझना पड़ेगा. Hinduism, unlike other religions, has given its entire focus on individual journey. मतलब आप अगर हिंदू धर्म में हैं तो आपका मोक्ष का रास्ता जो है वो इंडिविजुअल है. ठीक है, आपके कर्मों का जो फल है वो इंडिविजुअल है और यहाँ कलेक्टिव नहीं है कुछ भी. यहाँ सोल की जो जर्नी है, आत्मा का जो सफर है, वो अपने खुद के लिए है. आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप खुद कुछ कर्म करके उसका फल दूसरों को मिल जाए. ऐसा हमारे धर्म की फिलॉसफी नहीं कहती हम, क्योंकि आत्मा को इंडिविजुअली ट्रैवल करना है. तो अब ये जो फिलॉसफी, बेसिक फिलॉसफी है, इसी पे हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर पूरा बेस्ड है. अब मैं बताता हूँ कैसे. तो मंदिर जो है वो, हमें ये चीज़ पहले तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो आइकनोग्राफी है, जो मूर्ति कला है, वो ओरिजिनली हिंदुइज्म उसको वैदिक एज से या पोस्ट वैदिक एज से नहीं फॉलो करता हुआ आ रहा है. ठीक है, हमें जो सबसे पुराने मंदिरों के अवशेष मिले हैं वो गुप्ता एज के मिले हैं. उसका रीज़न ये है कि जब मंदिर जो बनना शुरू हुए भारत में, वो बुद्धिज्म के रिस्पॉन्स पे बनना शुरू हुए. व्हेन बुद्धिस्ट आइकनोग्राफी टुक ओवर इंडिया, देन वी रियलाइज दैट वी आल्सो हैव टू फोकस ऑन आइकनोग्राफी. तो हम लोग मूर्ति उपासक ही सिर्फ नहीं है हिंदूज. ठीक है, हिंदूज फिलॉसफी में ज़्यादा बिलीव करते हैं, दर्शन में उसके ज़्यादा बिलीव करते हैं, उसकी स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा बिलीव करते हैं. मगर इन रिस्पॉन्स टू द बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर वी स्टार्टेड बिल्डिंग द टेम्पल आर्किटेक्चर. अब मंदिर का जो सबसे पुराना जो एग्जिस्टिंग टेम्पल है हमारे पास मध्य प्रदेश में हमको मिला है उसके अवशेष, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक गर्भगृह है. एक चकोर कमरा है जिसमें मूर्ति रखी हुई है शंकर जी की. ठीक है, मेरे ख्याल से पंचमुखी शिवलिंग रखी है वहाँ पे, और कुछ भी नहीं है. कोई शिखर नहीं है, कोई मंडप नहीं है, कोई विमान नहीं है, कोई गोपुरम नहीं है, कुछ नहीं है. मगर विद टाइम वी स्टार्टेड बिल्डिंग इट एज अ श्राइन. किसी भी प्रांत का, राज्य का जो मंदिर होता था, वो उसका सेंट्रल फोकल पॉइंट होता था उसकी एक्टिविटीज का. मंदिर के इर्द गिर्द ग्राम और शहर डेवलप होते थे, सारी मार्केट प्लेसेस डेवलप होती थी, सब कुछ मंदिर के इर्द गिर्द हो रहा है, पूरी एक्टिविटीज. तो अब जब आप मंदिर के शिखर को देखते हो तो वो शिखर इतना ऊंचा क्यों होता है? इसको साउथ में विमान भी बोलते हैं द्रविडियन आर्किटेक्चर में. वो इतना ऊंचा इसलिए होता है कि आप कहीं से भी दूर दराज के किसी भी इलाके से उसकी जब स्काईलाइन होराइजन चेक करोगे तो आपको वो श्राइन एज अ लैंडमार्क दिखती रहेगी, टू बिल्ड दैट सेंस ऑफ डायरेक्शन. उस पर कलश होता है पत्थर का बना हुआ, या उसके ऊपर फिनियल लगे होते हैं पीतल के, ठीक है, या सोने के भी. तो वो स्वर्ण कलश बहुत मशहूर होते थे शिखरों पे. तो वो उसका पर्पस वो था. उसकी फिलॉसफी में अगर हम लोग जाएं तो उसकी फिलॉसफी ये है दैट वी आर living on earth, we the mortals who live on earth have the power to reach through that icon who is sitting in the garbhagriha to the divine on the top. तो ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है वो, इसीलिए शिखर. अब हम गर्भगृह की बात कर लेते हैं. गर्भगृह जो है हिंदू मंदिरों का, पुराने मंदिरों का, वो बहुत छोटा होता है. उसका दरवाजा होता है छोटा सा, बीच में एक पूरे श्रृंगारों से युक्त एक बड़ी सी मूर्ति होती है सैंक्टम सैंक्टोरम में, गर्भगृह में, और उस मूर्ति के पास एक छोटा सा दिया जल रहा होता है. और जब आप मंदिर का दर्शन करने जाते हो तो उसमें इतनी कम गर्भगृह में जगह होती है कि आपको कुछ नहीं दिखाई देगा. आपको सिर्फ और सिर्फ आप और आपके भगवान का वो रिप्रेजेंटेशन. वो मूर्ति भगवान नहीं है, वो मूर्ति जो है वो भगवान का रिप्रेजेंटेशन है, कि कोई गॉडलीनेस है, कोई डिविनिटी है, कोई
ईश्वर तत्व है वो इतना ही खूबसूरत है जितनी खूबसूरत ये मूर्ति है, वो दिखाने के लिए वो रिप्रेजेंटेशन है उसका। अब हम लोग इस जंक्शन पे पहुंच गए कि गर्भगृह छोटे क्यों होते हैं। ठीक है, जब हमारा पूरा स्थापत्य इतना विराट है तो गर्भगृह इतने छोटे से क्यों है। दिस ब्रिंग्स अस बैक टू दैट ओल्ड हिंदू फिलॉसफी अबाउट विच आई वाज टेलिंग यू कि हमारे लिए जो सोल की जर्नी है वो इंडिविजुअल है। तो अब जब आप गर्भगृह के सामने खड़े हैं एक भक्त की तरह, अपने प्रभु की प्रतिमा के सामने खड़े हैं सैंक्टम सैंक्टोरम में, गर्भगृह में, तो अब आपके और उनके बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। इसीलिए गर्भगृह के अंदर की जो दीवारें होती हैं वो बिल्कुल प्लेन होती हैं। ठीक है, उसमें बस बीच में मूर्ति रखी होगी, एक दिया जल रहा होगा और आप और आपके भगवान की प्रतिमा, और आप और उनके बीच में कोई नहीं है, मंदिर का महापुजारी भी नहीं है, कोई नहीं है। ये हमारी एंशिएंट फिलॉसफी है दैट टू रीच गॉडलीनेस, टू रीच डिविनिटी, टू रीच एनलाइटनमेंट वी रिक्वायर नो वन इन दिस जर्नी। हम अपने ईश्वर तक 1-on-1 बात करेंगे, हम किसी के थ्रू नहीं पहुंचेंगे वहां तक। ये हमने करप्ट कर दिया विद एजेस कि हमें किसी की जरूरत पड़ गई टू फाइंड अ मीडियम एंड रीच देयर, टू रीच गॉड। हमें इसकी जरूरत नहीं थी गुप्ता एज के समय में। और गर्भगृह जो है वो छोटे और प्लेन इसीलिए हैं क्योंकि वो हमें ये दिखा रहे हैं कि जब आप सत्य की तलाश में होंगे, जब आप ईश्वर की तलाश में होंगे, तो सारे डिस्ट्रैक्शंस आपसे दूर हो जाएंगे, मटेरियल वर्ल्ड की सारी चीजें आपसे दूर हो जाएंगी। दैट इज व्हाई द वॉल्स ऑफ द सैंक्टम सैंक्टोरम आर ओरिजिनली प्लेन, और बस मूर्ति रखी होती है जो बड़ी ही विराट है, बड़ी ही खूबसूरत है, और जिसके आगे बस एक छोटा सा दिया लग रहा है, जैसे त्राटक में करते हैं हम कि फोकस करते हैं एक चीज पे, वैसे ही आप उस ईश्वर के सामने दिए की भी जरूरत इसलिए भी है क्योंकि लाइट तो है नहीं, तो हमें ईश्वर की प्रतिमा देखने के लिए चाहिए भी तो रोशनी भी तो चाहिए, तो उसके लिए भी दिया जल रहा है, एंड टू कीप योर फोकस एंटायरली ऑन दैट आइडल। और यही खूबसूरती है। अब विद टाइम टेम्पल आर्किटेक्चर इवॉल्व कर गया। सो लाइक सलिवन हैज सेड, नो, लुई सलिवन, दैट फॉर्म फॉलोज फंक्शन। सो एवरी स्ट्रक्चर विच इज बिल्ट हैज टू सॉल्व अ सर्टेन पर्पस। और ये मंदिर का स्थापत्य इतना ग्रैंड विद टाइम इसीलिए होता गया क्योंकि उसके फंक्शन बढ़ते गए। हमें पता है कि मंदिर जो था वो सेंटर ऑफ एक्टिविटीज बन गया, नॉट जस्ट religious activities, all cultural activities, trade, politics, everything was centered around these temples. इसीलिए जो हमें 7th-8th century onwards जो temples दिख रहे हैं इंडिया में, वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड दिख रहे हैं। और उसमें हमें अब सोसाइटी भी तो डेवलप हो रही है, इवॉल्व हो रही है ना, उसमें भी डाइवर्सिटी आ रही है, तो वो डाइवर्सिटी हमें मंदिर के आर्किटेक्चर में भी दिख रही है। वो हमें जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, जैसे खजुराहो का एग्जांपल ले लेते हैं कि खजुराहो के मंदिर में बाहर जो मूर्तियां बनी हुई हैं वो क्यों बनी है, उनका क्या पर्पस है। उनका पर्पस ये है कि अगर हम टेम्पल फिलॉसफी की बात कर रहे हैं तो हमने ये बता दिया कि गर्भगृह तो प्लेन है अंदर से, मगर बाहर जो है, जो बाहर की दुनिया जो है आपकी, वो इतनी ही डाइवर्स है, इतने ही डिस्ट्रैक्शंस हैं। और सोसाइटी में जो जो एस्पेक्ट्स हमें पता है, जैसे हम लोगों ने एक पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो जो एस्पेक्ट्स हमें पता है वो हम मंदिर की दीवारों पे उकेरना शुरू कर दिए, और इस तरह मंदिर का स्थापत्य जो है वो और इंट्रिकेट होता गया। ग्रैंड तो हो ही रहा था, इंट्रिकेट भी हो रहा था, महीन कारीगरी शुरू हो गई उस पर। ठीक है, और टेम्पल जो था वो सेंटर ऑफ एक्टिविटीज बनता जा रहा था। तो हिंदू फिलॉसफी जो है वो आपको यही कहती है कि जब आप मंदिर के बाहर से दुनिया को देख रहे हो तो वो दुनिया पूरे वर्ल्डली अफेयर्स को दिखा रही है, मगर जब आप सैंक्टम सैंक्टोरम की तरफ बढ़ रहे हो, इन योर जर्नी ऑफ गोइंग इनवर्ड, मेडिटेशन में आप क्या करते हो, अपने अंदर झांकते हो ना, भीतर झांकने लगते हो। तो वही है, जब आप वो उसका कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन है। आप सोचो, इंडिया ने, हमने ये सोच लिया था उस समय आर्किटेक्चर में कि हम इस दर्शन को किस तरह मंदिर के स्थापत्य में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम कर रहे थे कि बाहर की वॉल्स पे हम पूरे वर्ल्डली डिस्ट्रैक्शंस दिखा रहे थे, ऑल द वाइसेस, ऑल द डिजायर्स। एंड हम जब मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे थे, जब हम मंडप में आ रहे थे उसके और गर्भगृह की तरफ बढ़ रहे थे, तो सब कुछ प्लेन होता जा रहा था, एंड द एंटायर फोकस वाज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द सैंक्टम सैंक्टोरम एंड द चीफ आइडल, जो प्रतिमा है वो उसके अंदर जो विराजमान है विग्रह, उस विग्रह की तरफ आपका ध्यान केंद्रित हो जाए,
फोकस्ड हो जाए और आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन ना रहे. सो आई थिंक दिस डिफाइंस द टेम्पल फिलोसफी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. ये इससे भी कॉम्प्लेक्स है मगर अभी के लिए वी कैन डिफाइन इट दिस सिंपली. Sir, like you said, Louis Sullivan stated, form follows function. So how does that Indian architecture balances that beauty with that purpose? Like I said, no, good you followed. Like I said, Sullivan ने yes, he has said that form follows function. तो जब function मंदिर की utility बढ़ती गई तो उसका form भी विस्तार लेता गया और वो और ज़्यादा डिटेल्ड होता गया. ठीक है. और बेस्ट पार्ट ये है इसमें कि वो बैलेंस जो है, जो तुमने कहा कि ब्यूटी और फंक्शन का बैलेंस क्रिएट करना, वो उसका प्राइम एग्जांपल मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में टेम्पल आर्किटेक्चर है कि उसका रिलीजियस पर्पस भी है, उसका सोशल पर्पस भी है, कल्चरल पर्पस भी है, उसका पॉलिटिकल पर्पस भी है. दैट इज व्हाई किंग्स एंड रूलर्स वो पेट्रोनाइजिंग टेम्पल्स, वो यूजिंग पब्लिक फंड्स टू बिल्ड दोस ग्रैंड टेम्पल्स, राइट. तो बैलेंस तो है वहाँ पे बहुत अच्छा. ठीक है. मंदिर खूबसूरत भी है बहुत सारे, उनका स्थापत्य भी बहुत ही इंट्रिकेट है, बहुत ही डिटेल्ड है. जैसे एग्जाम्पल ले लो, खजुराहो है एग्जाम्पल, कोणार्क है एग्जाम्पल. एंड नॉट जस्ट द बैलेंस ऑफ आर्ट्स एंड फंक्शन, द बैलेंस ऑफ आर्ट्स, फंक्शन एंड साइंस एज वेल, है ना. हमको कोणार्क के आर्किटेक्चर में कितने सारे साइंटिफिक एलिमेंट्स दिखते हैं. उसका जो रथ बना हुआ है वो सन के रेवोल्यूशन के इर्द गिर्द है, डेज, मंथ्स, ईयर्स बता रहा है ना. तो एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड, नथिंग इज कि बस वो है वहां पे, वो प्रॉपर थॉट प्रोसेस के साथ बनाया गया है उसको. इट्स अ वेल थॉट प्रोसेस, राइट. और अब जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो, एलोरा का एग्जाम्पल ले लो. एलोरा इज अ मार्वल, इट्स अ मैन मेड मार्वल. लाइक द वेस्टर्न पीपल बिलीव कि एलोरा ह्यूमंस ने बनाया ही नहीं है, वो एलियंस ने बनाया है. वाई सो? अगर आप अलोरा के आर्किटेक्चर को देखिए तो अलोरा जो है वो एक सिंगल रॉक को काट के बनाया गया है. आर्किटेक्चर में क्या होता है, आर्किटेक्चर में बॉटम अप अप्रोच होती है ना, आप नीचे से ऊपर की तरफ स्थापत्य को बनाते हो. अलोरा में इसका उल्टा है. अलोरा में ऊपर से नीचे की तरफ मंदिर बनाया गया है, मतलब पत्थर को ऊपर से तराशना शुरू करा गया है और नीचे की तरफ लेके आया है. तो इट्स अ साइंटिफिक मार्वल. और बैलेंस ऐसे है कि आप अलोरा में देखिए, दे हैव यूज्ड बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू एलिमेंट्स एंड दे आर सो वेल सिंक्रोनाइज्ड, सो कोऑर्डिनेटेड. देयर इज सच अ बैलेंस एंड काम देयर इन द आर्किटेक्चर. तो यही तो स्थापत्य का अमेजिंग पार्ट है आर्किटेक्चर का, कि बैलेंस इतनी, मतलब जो सिंक्रोनाइजेशन है, जो बैलेंस है, वो परफेक्शन के साथ अचीव किया जा रहा है. हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, रानी की वाव गुजरात में. रानी की वाव जो है वो बेसिकली, वाव क्या होती है, बावली क्या होता है, स्टेप वेल, जिसमें आप उतर के जाते हो स्टेप से, और कुआं होता है नीचे जिससे आप पानी ले लेते हो. ठीक है. तो अब रानी की वाव जो है वो बेसिकली जमीन के अंदर अंडरग्राउंड इन्वर्टेड टेम्पल है. अगर मंदिर का शिखर है और मंदिर को पहुंचने का रास्ता है, उसको पलट दो तो जो वेल तक पहुंचने का जो जरिया है वो शिखर का इन्वर्टेड है, और स्टेप्स जो है वो उल्टे जा रहे हैं. मंदिर में स्टेप्स ऊपर की तरफ जाते हैं, वाव में नीचे की तरफ जा रहे हैं. तो बेसिकली इट इज एन इन्वर्टेड टेम्पल. तो कितना अमेजिंग मार्वल है ये आर्किटेक्चर का. तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम आर्किटेक्चरली साउंड नहीं थे, हम उसके एस्थेटिक्स को, उसकी साइंस को, उसकी यूटिलिटी को इतनी खूबसूरती से बैलेंस कर रहे थे. उसकी स्ट्रेंथ पे भी ध्यान दिया जाता है. ऐसा नहीं था कि आज बना दिया, से आज होता है कि बना दिया 5 साल में पत्थर झड़ गए. नॉट लाइक दैट. दे हैव बीन स्टैंडिंग फॉर 1000 years एंड दे रिक्वायर द लीस्ट ऑफ मेंटेनेंस, है ना. उसमें जो इंटरकनेक्टेडनेस हो रही है, इंटरलॉकिंग ऑफ स्टोन्स हो रही है, या जो भी मोटा यूज हो रहा है, वो इस तरह बनाया जा रहा है जो इंडियन क्लाइमेट के लिए एकदम वेल प्लेस्ड हो. कि अगर सीलन का एरिया है, अगर उमस का एरिया है, तो वहां पे जितना ह्यूमिडिटी मिलेगी उतनी स्ट्रेंथ मिलती जाएगी स्ट्रक्चर को, है ना. तो साइंस यूटिलाइज हो रही है वहां पे, नॉट जस्ट आर्ट्स. फिर उसमें ब्यूटिफिकेशन कितनी खूबसूरत है.
जितनी भी इंस्क्रिप्शंस, एंग्रेविंग्स और रॉक आर्ट है, स्कल्पटिंग है, वो सब कुछ कितनी बैलेंस्ड और परफेक्ट है। आपको क्यों किसी मंदिर की किसी भी मूर्ति में कोई फ्लॉ नहीं दिखता, कोई इम्परफेक्शन नहीं दिखता। ऐसा थोड़ी ना है कि वो एक बार में उसने बनाया और एकदम परफेक्ट बन गया। हमें तो ऐसा ही लगता है मंदिर देख के, ऐसा नहीं है। द फैक्ट इज कि वो कई बार ट्रायल एंड एरर मेथड से बनता होगा, कितने रिजेक्शंस होते होंगे, तब एक फाइनल पीस, मास्टरपीस तैयार होता होगा और उसको प्लेस किया जाता होगा टेम्पल पे एज अ पैनल। तो इस तरह आर्किटेक्चर ने बहुत ही खूबसूरत बैलेंस क्रिएट किया हुआ है। वाओ, दैट वाज इंटरेस्टिंग टू नो। मेरे लिए ये सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन अभी जैसे मैंने सर्च किया इन विजयनगर आर्किटेक्चर, जो उसमें भी हमारे बहुत सारे आर्किटेक्चर के मार्वल्स देखने मिलते हैं, उसमें से एक विट्ठल टेम्पल है। तो वो रिलीजियस ना होकर के कैसे वो सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स को कवर करता है? हाँ, जैसा मैंने अभी बताया ना कि टेम्पल्स जो है वो सिर्फ अपना रिलीजियस फंक्शन नहीं फुलफिल कर रहे थे, वो अपने सोशल कल्चरल फंक्शंस पे भी उतना ही फोकस रखे हुए थे। ठीक है, तो अब जैसे विट्ठल टेम्पल की बात कर रहे हो, वहाँ के आर्किटेक्चर की, उसी प्रॉक्सिमिटी में विजयनगर के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे लोटस महल है, हजारा राम टेम्पल है, महानवमी डब्बा है। तो ये जितने भी है ना, इनकी सबकी कोई स्पेशलाइज्ड यूटिलिटी थी, ये किसी फिक्स्ड पर्पस के लिए बन रहे थे। जैसे हम लोग और साउथ में चलते हैं, लेट्स गो टुवर्ड्स द चोल आर्किटेक्चर। अब जो चोल टेम्पल्स हैं, वहां पे देखो, उन्होंने क्लोज्ड स्पेस में टेम्पल को यूटिलाइज किया, मतलब उन्होंने वॉल्ड टेम्पल्स बनाना शुरू किया। तो जो द्रविडियन आर्किटेक्चर है, उसमें तुम जब गोपुरम से घुसते हो, फिर उसके बाद जो मंडप जो पहले गर्भगृह के पहले होता था, शिखर के नीचे ही होता था, उस मंडप को वो बाहर ले आए। क्यों ले आए? कभी सोचो इसके बारे में। इसलिए ले आए क्योंकि पहले उस मंडप की यूटिलिटी यज्ञ करना, पूजा करना, मंत्रोच्चार करना रहा होगा। अब वो सिर्फ वो नहीं था, अब वो ट्रेड भी हो रहा था मंदिर में, उसके प्रेसिंग्स में। तो अब हमें वो छोटी सी जगह गर्भगृह के पास छोटी पड़ रही थी, तो हम उसको बाहर ले आए और हमने उसको एक्सपैंड कर दिया। जब हमने उसको एक्सपैंड किया तो अब एक्टिविटीज के लिए हमारे पास जगह बढ़ गई। तो दैट इज हाउ, लुक एट द टेम्पल्स एंड देयर आर्किटेक्चर, they were the prime center of activities, like since forever. So, sir, we've talked a lot about temple architecture. What about Mughal architecture? वो अपने टाइम के पहले प्री मुगल आर्किटेक्चर से कैसे है? So now you have brought me to my area of research. That's interesting. Let's talk about the pre-Mughal architecture first. That is the architecture of Delhi Sultanate. We all know that in the 12th century, around 12th century, the political invasions started happening. तो अब सेंट्रल एशियन एलिमेंट्स, अफगान एलिमेंट्स जो थे, वो ट्रैवल करके इंडिया में आना शुरू हो गए थे, राइट? तो जो सल्तनत एरा का आर्किटेक्चर है, वो उसी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब देर आर इंस्टेंसेस ऑफ टेम्पल्स बीइंग ब्रोकन बिकॉज इंडिया वाज ऑलरेडी अ फ्लरिशिंग सिविलाइजेशन एंड it was going through a rough patch, but of course the temples were there. तो कुछ मंदिर तोड़ के स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे थे, तो हमें उसके रेमिनेंट्स भी मिलते हैं। जैसे हमें कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क में मिलता है, जो कुतुब कॉम्प्लेक्स में है, जहाँ पे हमें टेम्पल रेमिनेंट्स दिखाई देते हैं। प्लस वो जो आर्किटेक्चर है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं, वो बहुत स्टार्क डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं बिटवीन इंडियन आर्किटेक्चर एंड द आर्किटेक्चर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। तो वो डिफरेंस बहुत स्टार्क है वहाँ पे। एक तो जब आप सल्तनत एरा के आर्किटेक्चर को देखते हो ना, तो वो बहुत मैसिव हैं, बहुत बड़े हैं। वो एक फीलिंग ऑफ माइट दिखाते हैं आपको, क्योंकि द invaders had to show their supremacy over the land they had invaded and they had captured, and they started ruling after that as our sultans. तो वो हमें उसके आर्किटेक्चर में बहुत क्लियरली दिखाई देता है। प्लस जो एलिमेंट्स हैं, वो सारे स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन पे कर रहे हैं, एस्थेटिक्स पे कर रहे हैं, बट नॉट लाइक वी सी इन मुगल आर्किटेक्चर। वो थोड़े से ज़्यादा प्लेन है, ठीक है? जो डोम है, जो वॉल का इंक्लिनेशन है, वो सब कुछ अफगान आर्किटेक्चर, सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर से ज़्यादा इंस्पायर्ड लग रहा है। बट इट हैजंट रीच टू द डेलिकेट नेचर ऑफ आर्किटेक्चर विच वी सी इन मुगल एरा, है ना? वो हमें प्री मुगल में नहीं दिखाई देता। अब मुगल एरा का जो आर्किटेक्चर है, कमिंग बैक टू इट,
is very, very aesthetically sound. It has reached its peak. We see that elements are not just Central Asian. Temples are not just being broken and structures being formed. We have the prime examples are of those structures which were built from the rubble, from the dust, right? तो जैसे ताजमहल का एग्जाम्पल हमें पता है कि वो पूरा फ्रॉम इट्स प्लिंथ टू इट्स टॉप हैज बीन बिल्ट एंटायरली देयर, राइट? तो उनमें हमें दिखाई देता है, जो मुगल आर्किटेक्चर की खासियत भी थी, कि एलिमेंट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एशियन नहीं है। ईरान से आ रहे हैं, समरकंद से आ रहे हैं, बुखारा से आ रहे हैं, निशापुर से आ रहे हैं, बट उसमें राजपूती एलिमेंट्स भी हैं, उसमें बंगाल के एलिमेंट्स भी हैं। जैसे औरंगजेब के समय में हमें दिखाई दे रहा है कि बांग्ला रूफ का कल्चर नॉर्थ इंडिया में आ गया, राइट? द थैश्ड बांग्ला रूफ वाज कन्वर्टेड इनटू मार्बल बांग्ला रूफ्स अंडर औरंगजेब एंड शाहजहां, राइट? जैसे पालकी महल का एग्जाम्पल है आगरा का। दैट मैसिव impression which the might of the Mughal Empire had to throw on the people of India was seen in the beginning. जब अकबर का आर्किटेक्चर हम देख रहे हैं, जब हम सीकरी देख रहे हैं, तो हम वो बुलंद दरवाज़ा देख रहे हैं, तो हम वो बुलंद स्थापत्य भी देख रहे हैं साथ में। तो रेड सैंडस्टोन का बहुत यूटिलाइजेशन है। पर जैसा मैंने बताया कि विद द इवोल्यूशन ऑफ आर्किटेक्चर हम डेलिकेट और इंट्रिकेट होते गए, और तो अब वो रेड सैंडस्टोन जो है वो जहांगीर और शाहजहां के टाइम तक आते आते मार्बल ने रिप्लेस कर दिया। अब हम पच्चीकारी या इनले वर्क पे फोकस करने लगे, अब हम जेम्स लगाने लगे उसमें, अब हम उसको बहुत डेलिकेट बना दिए, बहुत इंट्रिकेट बना दिए। तो द पीक ऑफ एनी आर्किटेक्चर, नो, द वे इट इज इन वेस्ट वील डिस्कस इज क्लियरली इन इट्स इंट्रिकेसी। द एस्थेटिक्स लुक most balanced and most highlighting when the work is intricate. ये हमें मुगल आर्किटेक्चर में दिखाई देता है। तो अकबर के समय में वो मैसिवनेस हमें दिख रहा है, मगर शाहजहां के टाइम तक आते आते वो बिल्कुल डेलिकेट हो गया। ताजमहल बीइंग द प्राइम एग्जाम्पल, कि ताजमहल के आर्किटेक्चर में बिल्कुल डेलिकेट हो गया वो आर्किटेक्चर। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट मुगल आर्किटेक्चर इज कि उन्होंने ना एलिमेंट्स हर जगह से लिया विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि हम हिंदू एलिमेंट्स नहीं लेंगे, कि आपको लाल किले में सूरज बने भी दिख जाएंगे सीलिंग पे, है ना? उनके फ्लैग पे भी सूरज था। तो हमें इस तरह हर चीज़ दिख रही है, हमें आर्चेस में दिख रहा है, हमें कर्व्ड पिलर्स में दिख रहा है, हमें राजपूती आर्किटेक्चर की छाप हर जगह दिख रही है। तो द इंटरचेंज स्टार्टेड हैपनिंग। जो एक्सचेंज प्री मुगल टाइम्स में नहीं हो रहा था, सल्तनत का आर्किटेक्चर हिंदू रूलर्स नहीं बना रहे थे, वो खत्म हो गया, वो डाइल्यूट होके ब्लीक आउट होके खत्म हो गया मुगल एरा में। क्योंकि अगर मुगल्स राजपूत एलिमेंट्स ले रहे हैं, तो राजपूत आर्किटेक्चर में, जैसे आमेर के आर्किटेक्चर में मुगल एलिमेंट्स हैं, वहां भी दीवाने आम दीवाने खास है। तो अब एक्सचेंज शुरू हो गया। तो किसी भी सोसाइटी की स्टेबिलिटी हमें इसी तरह दिखती है जब कल्चरल एक्सचेंज शुरू हो जाए। तो अब हिंदू मुस्लिम का जो वैर है, जो गैप है, जो शायद तक दिल्ली सल्तनत के टाइम पे था, वो अब खत्म हो गया अकबर के टाइम में, एंड इट फॉलोड सूट विद द लेटर मुगल्स। तो आर्किटेक्चर जो था वो अपने सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में आया, अपने सबसे ज़्यादा पीसफुल जोन में आया, फ्लरिशिंग जोन में आया अंडर द मुगल्स। इसीलिए मुगल आर्किटेक्चर जो है उसका जो इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पोजिट कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। चाहे वो टूम्स हों, चाहे वो पैलेसेस हों, चाहे वो मॉस्क्स हों, उन्होंने हर जगह इस कॉम्पोजिट गंगा जमनी तहजीब को रिफ्लेक्ट किया अपने आर्किटेक्चर में। एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स देम आई थिंक स्टैंड आउट अमंग अदर्स, कि उन्होंने आर्किटेक्चर को, उसके रिलीजियस एंगल को डाइल्यूट कर दिया, उसके पर्पस को कॉम्पोजिट कर दिया, कि हिंदुस्तानी लोगों को भी देख के उन इमारतों को ऐसा लगे कि ये सेंट्रल एशियन नहीं है, ये हमारे देश की धरोहर है, ये हमारी धरोहर है। इसीलिए वो डेलिकेट है, वो उल्टे पद्म जो हैं, जो इन्वर्टेड लोटस डिजाइन में डोम बने हुए हैं, या जो आपको टू मच ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इंडियन एलिमेंट्स, घंटियों का, शंख का, कमल का, चक्र का, ये हमें मुगल आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि वो एक कॉम्पोजिट आर्किटेक्चर बिल्ड कर रहे थे, जिसमें वो डिवीजन ही ना रह जाए कि क्या हिंदू है क्या मुस्लिम है, सब कुछ मुगल है। So that was it.
So, sir, now that you have touched medieval architecture, let us go to the Western architecture. मैंने स्पेनिश और मोरक्कन आर्किटेक्चर में कुछ सिमिलैरिटीज़ देखी, तो क्या ऐसा है क्या कि मोरक्कन आर्किटेक्चर से कुछ एलिमेंट स्पेनिश आर्किटेक्चर में गए, और मैंने कुछ डिफरेंसेस भी देखे। स्पेनिश आर्किटेक्चर में गॉथिक आर्किटेक्चर का थोड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंस है जो कि मोरक्कन आर्किटेक्चर में नहीं दिखता, तो ऐसा क्यों है? Okay. So, first of all, we have to understand that yes, architecture did travel from Morocco to Spain. मगर इसका जो रीज़न है, जो तुमने डिफरेंस का रीज़न पूछा कि क्यों ऐसा है कि स्पेनिश आर्किटेक्चर में गॉथिक एलिमेंट्स दिखते हैं बट मोरक्कन में नहीं दिखते, इसका रीज़न जो है वो रीजनल और पॉलिटिकल ज़्यादा है। रीजनल इस तरह से है कि स्पेन जो है वो मेनलैंड यूरोप का हिस्सा है और मोरक्को जो है वो अफ्रीकन इंक्लिनेशन है उधर। तो आर्किटेक्चर जब ट्रैवल कर रहा था मोरक्को से स्पेन, तो वो ट्रैवल तो कर रहा था, मगर दूसरी तरफ से यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी तो स्पेन में आ रही थी ना, और थी पहले से। व्हेन द मॉस्क्स वर बीइंग बिल्ट इन स्पेन, तो वहाँ पे उससे पहले यूरोपियन आर्किटेक्चर तो था ही। तो हमें वो रेमनेंट्स भी दिखते हैं, प्लस वो क्योंकि काम करने वाले कारीगरों पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे हमें जब टेम्पल एलिमेंट्स दिखाई देते हैं इंडियन आर्किटेक्चर में, मुस्लिम आर्किटेक्चर में, तो हमें लगता है कि ये मंदिर तोड़ के बनाया गया, हमेशा ऐसा लगता है। मगर हमेशा ये केस नहीं होता। ये भी एक केस होता है कि जो उस मुगल आर्किटेक्चर को या मुस्लिम आर्किटेक्चर को बनाने वाले जो मेसन्स थे, वर्कर्स थे, वो जो कारीगर थे, उनकी कारीगरी ही, क्योंकि यहाँ की नेटिव कारीगरी थी, तो उनकी कारीगरी में हमें रिफ्लेक्शन दिखाई देगा हिंदू आर्किटेक्चर का। उसी तरह हमें स्पेनिश आर्किटेक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो कारीगर थे वो यूरोपियन थे, तो वहाँ पे गॉथिक एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। अब गॉथिक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, गॉथिक आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, तो वो भी बहुत ही स्पिरिचुअल आर्किटेक्चर है। वहाँ पे भी ना वी आर शोइंग द माइट ऑफ डिविनिटी, तभी टावर्स हैं। इट ड्वेल्स अराउंड फैंटेसी अलॉट। तो आपको वैसे माइथोलॉजिकल क्रीचर्स दिखाई देंगे, जैसे गार्गोइल्स, ये आपको गॉथिक आर्किटेक्चर में बहुत दिखाई देते हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो आर्किटेक्चर का पीक था अपने दौर का, तो इंट्रिकेट भी है बहुत ज़्यादा। मगर एट द सेम टाइम इट हैज़ द क्लियर इन्फ्लुएंस ऑफ गॉड्स, जिसका स्टार्क डिफरेंस आया जब रेनेसांस आर्किटेक्चर आया। तब अब हम फैंटेसी, माइथोलॉजी, रिलीजन में ड्वेल सिर्फ नहीं कर रहे थे, अब हम ह्यूमनिज्म और रियलिज्म को ले आए थे आर्किटेक्चर में। तो इसीलिए विंची के आर्किटेक्चर में बिल्कुल अलग इन्फ्लुएंस है। ऐसा नहीं है कि वो गॉथिक आर्किटेक्चर से कम है या ज़्यादा है, वो कंपैरिजन यूजलेस है। द पॉइंट इज कि अप्रोच ही बदल गई बिल्डिंग्स को बनाने की। अब अप्रोच जो है वो पूरी तरह से ह्यूमनिस्ट हो गई, तो हमें वो आर्किटेक्चर में भी दिखाई दे रही है। तो अब इसी तरह जब नियो क्लासिकल आया, तो नियो क्लासिकल में हमने क्लासिकल एलिमेंट्स को लिया मगर ह्यूमनिज्म को मिक्स कर दिया उसके साथ। नियो गॉथिक आया, गॉथिक रिवाइवल आया, तो हमने गॉथिक एलिमेंट्स लिए, जैसे ब्रिटिश आर्किटेक्चर, कॉलोनियल आर्किटेक्चर जो है, उसमें गॉथिक रिवाइवल का एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारा ऑल सेंट्स कैथेड्रल इलाहाबाद का, वो गॉथिक रिवाइवल में बना हुआ है। तो गॉथिक एलिमेंट्स हैं, गार्गोइल्स बने हुए हैं, फैंटेसी मैथोलॉजिकल क्रीचर्स आर देयर, बट एट द सेम टाइम इट हैज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन ह्यूमनिस्ट फॉर्म। तो आर्किटेक्चर जो है वो इवॉल्व भी होता है, उसमें एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्स भी होते हैं, और बेस्ट पार्ट ये है कि एलिमेंट्स एक दूसरे से उठाते हैं, मगर जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है उस आर्किटेक्चर में वो बिल्कुल यूनिक होता है। मतलब जैसे हिंदुस्तानी आर्किटेक्चर में वही पिलर्स, वही आर्चेस, वही डोम्स लेके हम सब कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मगर जो प्रोडक्ट है, चाहे वो मुगल एरा का हो, चाहे वो सल्तनत एरा का हो, चाहे वो राजपूत आर्किटेक्चर का हो, चाहे वो बुंदेला आर्किटेक्चर का हो, वो सब कुछ जो है, वो जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो अलग है, वो यूनिक है उनमें। So that is the best part about it. Now, so basically, man is striving to reach a balance in architecture all through the ages. ये जो बैलेंस की बात है, जिस सलिवन इतने थ्रस्ट के साथ बता रहे हैं हमें, वो इसी बैलेंस की बात कर रहे हैं। दैट ऑल थ्रू आउट, इवन टिल डेट इन द पोस्ट मॉडर्निस्ट आर्किटेक्चर, हम उस बैलेंस को अचीव करने की कोशिश करते जा रहे हैं बाय मेकिंग इट मोर फंक्शनल, मोर यूटिलिटेरियन। फॉर्म फंक्शन को फॉलो करता है, यही सलिवन ने बोला है। सही है? सर, मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि
वेस्टर्न आर्किटेक्चर का क्लासिफिकेशन जो है वो या तो किसी ट्राइब से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल गॉथिक, या तो किसी टाइम से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल नियो क्लासिकल, रेनेसॉन्स, या तो कंट्रीज से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल स्पेनिश, फ्रेंच। बट इंडिया में ऐसा क्यों है कि इट इज़ लार्जली बेस्ड ऑन द रिलीजियस क्लासिफिकेशन, फॉर एग्जांपल हिंदू आर्किटेक्चर एंड मुस्लिम आर्किटेक्चर? Oh, that's one of the most interesting thing which you have pointed out. When I was studying architecture, this was my problem with architecture from my end as well. कि Indian architecture को हमने communalize क्यों कर दिया? I asked my professor also, and he was also very impressed, and he also agreed to this point. तो इसका reason क्या है? Like you said कि Goths का Gothic architecture, British architecture, Renaissance age का Renaissance architecture, Baroque architecture, French architecture, then how come Hindu architecture and Muslim architecture? The problem is not just with architecture. The problem is also with the colonial idea of writing history, with historiography. So प्रॉब्लम ये है कि जब अंग्रेज़ों ने भारत का इतिहास लिखना शुरू करा तो उस इतिहास को उन्होंने एंशिएंट इंडिया को हिंदू इंडिया बोल दिया, हिंदू हिस्ट्री बोल दी, मिडिवल इंडिया को मुस्लिम हिस्ट्री बोल दी, और कलोनियल एज को कलोनियल एज बोलते थे। आयरॉनिकली उसको उन्होंने क्रिश्चियन एज नहीं बोला है, उसको उन्होंने कलोनियल एज बोला। अपने आप को उन्होंने उस पाप से मुक्त रखा, मगर इंडिया को टू डिवाइड एंड रूल, लाइक वी से, नो, टू कम्युनलाइज इट फॉर एवर, दे क्रिएटेड दिस डिस्टिंक्शन। और यही डिस्टिंक्शन उन्होंने आर्किटेक्चर के साथ किया। आज जो भारत में प्रॉब्लम है ना, जिसमें आज के कुछ ऐसे तत्व हैं जो बोल देते हैं कि ताजमहल हमारा नहीं है, जाके बृहदेश्वर टेम्पल देखो। भाई, जितना बृहदेश्वर हमारा है उतना ही ताजमहल हमारा है। हम क्यों उसको डिवाइड करना चाहते हैं? वो इसी भारत की महाभूमि पे बना हुआ है ना, यहीं के रहने वालों ने बनाया ना, जो यहाँ के थे, जो यहीं की जमीन पे पैदा हुए। तो हम उसको अपना या तुम्हारा कैसे कर सकते हैं? इसकी जो नींव रखी गई ना, वो नींव इसी कम्युनलाइजेशन में रखी गई, जो अंग्रेजों ने रख दी, जो उन्होंने हिंदू आर्किटेक्चर और मुस्लिम आर्किटेक्चर कर दिया, जो उन्होंने इसको एज से ना डिवाइड करके, या डायनेस्टीज से नहीं डिवाइड करके, या रीजन से डिवाइड ना करके रिलीजन से डिवाइड किया आर्किटेक्चर को। और इसी का जो असर है, इसीलिए व्हाट आई फील इज इन दीज टाइम्स व्हेन हाइपर नेशनलिज्म इज एट इट्स पीक, we see that we have started somehow, without even knowing, without even realizing, we have started following the ideas which the British were following, like communalizing everything. We don't have to communalize architecture. Architecture is as much ours as any other thing. You cannot divide it. And how can you divide it based on religion? Architecture doesn't patronize religion. Right? So, हम इस डिस्टिंक्शन का ही जहर है जो आज तक झेल रहे हैं। सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सर, जैसे हम मॉडर्न आर्किटेक्चर देख रहे हैं, इट्स मिनिमलिस्ट, सो इज इट क्लैरिटी और जस्ट द एब्सेंस ऑफ एफर्ट? एंड लाइक व्हाट अबाउट ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर? Okay, so we have come over to the modern architecture and the postmodern architecture. See, modern architecture I would not say is totally ugly, but what happened is कि, like I told you in the beginning, no, that architecture is also about space and time. अब हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम बैठ के 6 महीने तक एक मूर्ति तराशें। ठीक है, एक रीज़न ये भी है। एक रीज़न ये है कि अब हमारी अप्रोच जो है वो कन्वीनियंस ड्रिवन हो गई है रिलेटेड टू आर्किटेक्चर। हमें किसी भी स्ट्रक्चर की यूटिलिटी पे फोकस करना है, उसके एस्थेटिक्स को हमने साइडलाइन कर दिया। लाइक पीपल से नो दैट modern day minimalism is nothing but classic ugliness. It's exactly like that. That if you start comparing it, first of all, we shouldn't compare it. But if we compare it, we will definitely lack somewhere in terms of aesthetics. But the approach has also changed. Much like looking at a Renaissance painting and looking at a postmodern abstract painting. You'd say, ये क्या है, रंग छिटक दिए हैं. It's exactly like that. No, you cannot compare it because the approach has changed. The very approach has changed. And for the brutalist architecture, the entire idea of brutalist architecture was planned by this man called Le Corbusier. He was a French man. No, it was him only who designed Chandigarh in 1950s. So Chandigarh is basically, it's also called the manifesto city क्योंकि वो पूरी city planned है, modern planned city है, सेक्टर बने हुए हैं ग्रिड वाइज, और
वहाँ पे हमें brutalist architecture दिखाई देता है. Architecture which is, I don't know, to me it seems very dull. Being a scholar of medieval architecture, I find it very dull, very numbing. There may be a number of conveniences attached to it, but I think it's, when we look at its aesthetic quotient, I don't think so it goes anywhere above the mark. So एस्थेटिकली हम लोग पिछड़ गए हैं. अब हम इतनी मशीन्स, इतनी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं आर्किटेक्चर में, मगर वो इंट्रिकेसी क्यों खत्म हो गई? क्योंकि वो इंट्रिकेसी तभी आ सकती है व्हेन यू यूज दैट मच ऑफ हेड एंड लेबर इनटू इट. तो पहले आर्किटेक्चर एम्प्लॉयमेंट देता था लोगों को. जब इमामबाड़ा बन रहा था, वो इमामबाड़ा क्यों बन रहा था लखनऊ में? क्योंकि वहाँ फैमिन आया हुआ था, लोगों के पास खाने को नहीं था, करने को नहीं था, पैसे नहीं थे कुछ. तो नवाब साहब ने इमामबाड़ा बनवाने लगे. तो ये तक कहा जाता है कि दिन में इमामबाड़ा की दीवार खड़ी होती थी, रात को गिरा दी जाती थी वापस, इसलिए जिससे कि काम चलता रहे, एम्प्लॉयमेंट बना रहे. तो पहले आर्किटेक्चर पे इतनी नफासत, इतना इंट्रिकेट वर्क, इतना एस्थेटिक्स पर फोकस इसीलिए किया जाता था क्योंकि वो एम्प्लॉयबिलिटी क्वेश्चन भी वहाँ फंक्शन कर रहा था. अब हम एम्प्लॉयमेंट नहीं ढूंढ रहे आर्किटेक्चर में. यू आर गेटिंग इट? मासेस को एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए आर्किटेक्चर में. वी हैव एन नंबर ऑफ थिंग्स टू बी एम्प्लॉयड विद. तो अब हम उतना फोकस भी नहीं डाल रहे हैं. मशीन से बना रहे. इट इज़ वेरी इजी टू use cranes and make those skyscrapers which look like monsters to me. It is very easy to do that क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है. तो स्पेस एंड टाइम में हमने टाइम को रोक लिया, स्पेस का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं. स्पेस भी कम है, नॉट जस्ट टाइम. टाइम तो कम है, स्पेस भी कम है हमारे पास. मॉडर्न आर्किटेक्चर में राइजिंग पॉपुलेशन के साथ इंडिया इज, आई थिंक, द टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. तो हमारे पास स्पेस भी अब नहीं है. इसीलिए वी किल्ड दैट बंगलो लाइफ एंड वी स्टार्टेड बिल्डिंग दोज अपार्टमेंट्स. क्योंकि अब हमें उतनी ही जगह में हजारों लोगों को रहने की जगह देनी है. तो अब हम एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ते जा रहे हैं. सो वी आर बिल्डिंग दोज बॉक्सेस ओवर बॉक्सेस. तो स्पेस एंड टाइम की कमी होने के कारण I think the aesthetic quotient got lost somewhere. But see, we are living in this time. We can see what is happening around us right now. हमें नहीं पता 200 साल बाद, 500 साल बाद क्या होगा. We never know that there is again a revival of those classic architectures. Or we start giving, innovate something. We build a new kind of architecture, which is again achieving that balance of aesthetics and utility. The Venistus and the Formptus and Utilitas. So that completes the entire discussion, no? That we started with the ancient and coming over to the postmodern architecture. But in the meanwhile, we reached its peak in medieval times. We reached its peak when the balance was found somewhere between aesthetics and strength. Let's be hopeful about it. Maybe in future we again achieve that balance.